हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंप्लीट पार्टनरशिप वन शॉट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनरशिप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में अगर हम देखें तो उसमें हम वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लाने से पहले हमें करनी है। वो नेट प्रॉफिट लाने से पहले कौन सी चीजें हैं? वो नेट प्रॉफिट लाने से पहले हमें टू मैनेजरियल कमीशन, टू रेंट पेड, राइट, ये सब चीजें हमें पहले करनी है, यानी कि पी एंड एल अकाउंट में करनी है। उसके बाद जो हमारा यहाँ टू नेट प्रॉफिट आएगा, that amount will appear in P&L appropriation account. So we start with net profit, the net profit here, then we add up interest on drawings. Interest on drawing can be interest on drawing of profits only, right? So for the partner A, for partner B and for partner C, since it is an income for the company, for the firm, partnership firm, so it gets added on the credit side. On the debit side, it will be interest on capital, to salary if paid to any of the partners, to commission if paid to any of the partners, to if there are some reserves to be kept, general reserves kept, to profit transferred to partners capital account. So for partner A, partner B, partner C. Guys, please understand, if there are more than one partner and you are paying the salary, you have to make another column which is a column of details. So for example, I have paid 5,000 rupees per annum to the partner A and say 4,000 rupees per annum to partner B. In the final account, I only have to write the amount. The details have to be written inside the final amount column, right? So the excess of credit, I may write it here, excess of credit over debit side is the net profit. Excess of debit over credit would be the loss. So here would be the loss, by loss. Either there would be profit which is transferred to partners capital account, or there will be loss that gets transferred to partners capital account. Any loss, do you remember the feature? Any loss of the partnership firm is to be borne by the partners only, right? So any loss is to be borne by the partners. So this is the loss. If there is loss, then it will appear on the credit side. But we have to remember the net profit amount. The net profit must have been adjusted for managerial commission, for rent paid and for all such things. That does not appear here. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आता है, यानी कि सिर्फ पार्टनर के बारे में आता है। बाकी सब उससे पहले पी एंड एल अकाउंट में एडजस्ट करना जरूरी है, नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करना जरूरी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं? यू नो, इट्स वेरी इजी। जो भी चीजें आपकी क्रेडिट साइड पे हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज नेट प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड, सो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, for partner A, interest on drawings account for partner B. So मैं इसको partner capital account भी लिख सकता हूँ, right? 2, P&L appropriation account. Appropriation का एक्चुअल मतलब क्या होता है? Appropriation का एक्चुअल मतलब है distribution of profit, distribution of profits. जितना profit है उतना ही distribute करना है, उससे ज़्यादा आप distribute नहीं कर पाओगे। Then it is P&L appropriation account debit to interest on capital. So for partner A's account, to interest on capital for another partner account, then to salary
of A account, salary of B account, commission of A account, and then to net profit transfer to partners capital. So इसको net profit transfer to partner capital को हम क्या लिखते हैं? To A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. See, since we have assumed three partners in this question, this becomes the compound journal entries for P&L appropriation account. The next topic that we are going to cover now is partners capital accounts. So capital account दो तरह के होते हैं, एक होता है fixed capital account, एक होता है fluctuating capital account. So we may say partners capital account. Partners capital account may be divided into fixed capital account and fluctuating capital account. Fixed capital account में क्या क्या आता है? Fixed capital account में आता है capital account, current account. ये consolidate बनता है, right? So what is? Let's start with the fixed capital account. Fixed capital account वो capital account है जिसमें हम लोग capital हर transaction के साथ change नहीं करते. Please understand this concept. The capital of the partners does not change with every transaction. We call it fixed capital account. All the recurring items, it may be expenses or the income, appears relating to partners, appear with the partners capital account, fixed capital accounts current part, right? So let's understand them one by one. So we assume there are two partners. So here comes the particulars A and B. Particulars A, B. So we start with by balance brought down. This is the amount which is already there in the question. So balance brought down for both the partners by bank. Any additional capital introduced. Right? Nothing else appears on the credit side of partners fixed capital account. So this is fixed capital account. Here it is to interest on drawings or to drawings. These are drawings of capital. This is not drawing of profit. So this is drawings of capital. And then appears the to balance carried down. The balancing figure will appear here. So that is why we say, since no recurring items appear, so we say it is fixed capital account. Then it is fixed current account. Fixed current account. So fixed current account particulars A and B. This is particulars A rupees, B rupees. B rupees, A amount in rupees for A, and here comes the particulars. So we start up with by balance brought down. Now please tell me the difference here. We started the fixed capital account also with balance brought down. We started the fixed current account also with balance brought down. The difference is, this is capital's balance brought down. This is if there is any current account balance which is brought down, right? Then all the items that appeared on the debit side of P&L appropriation account. For example, by interest on capital for A or B, by salary for A or B, by reserves to be distributed between the partners. So these reserves can be any, maybe workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, or the general reserve, or any reserve which is given for the partners to be distributed, right? So then by P&L appropriation account, this is the profit that appears on the credit side. However, by goodwill account, the new partner brings in certain goodwill for the older partners. So if they withdraw it, this is distributed between the partners, right? 2. The items that appear on the debit side
for fixed current account is 2 interest on drawings. Please understand, 2 drawings. This is drawings of profit. There is difference between drawings of profit and drawings of capital, right? And 2, if there is appropriation loss, the partners have to bring in any loss. If you remember the feature of partnership, it states that if the firm is not having a money and it is a liability for the firm to pay, the partners have to bring in the loss. So this is the amount that partners have to bring in the aggregate ratio to balance carried down, the balancing figure for current account. This is the capital account once again. So capital account talks about only the items that appear on the capital side, that transact with the capital side. These are the transactions that affect the capital side of partners fixed capital account. These are the recurring transactions which happen regularly over a period of time. So interest on capital is given, salaries are given, reserves are distributed. So P&L, appropriation account, profits, and the drawings if there are any. So multiple transactions appear on the fixed current account. So fixed capital account has fixed capital account and fixed current account. Now get to fluctuating capital account. Fluctuating capital account में क्या होता है? Fluctuating capital account is the account which gets affected with every change in the transaction. It gets affected with every change. So for example, there is one account that is made, no separate account is required. So how do we make it? Particulars A rupees. So we again assume there are 2 partners only, right? B in rupees, particulars A in rupees and B in rupees. So this is credit side, this is debit side, this is, we write here capital account. If nothing is mentioned in the question, I am once again reiterating it. If nothing is mentioned in the question, please start solving the question using this method. If current account is given, it means you have to use fixed capital account method. Or 2 accounts are given, then you have to use fixed capital account method, whereby you have to make both the accounts. But if nothing is given in the question, it is fluctuating account. 95% of the times, this account comes in the question paper. So this account contains all the details. So by balance brought down, this is capital balance, right? Capital accounts balance. It also appears by balance of current account brought down, if there is any. Then this account contains interest on capital for all the partners, by salary for all the partners, by commission for all the partners, by reserves to be distributed, by goodwill for all the partners, right? By P&L appropriation account profit अगर सारे partners का, it has to be distributed. 2 interest on drawings, 2 drawings, both drawings of capital, 2 drawings of profit, right? All the transactions appear here. So the definition of fixed fluctuating capital account is that it gets affected with every transaction, right? And lastly is to balance carried down for capital account, or if there is any for current account. If there is loss, then to loss of appropriation account, right? P&L appropriation account loss, it will also appear. This is fixed and fluctuating both capital accounts, right? So fixed के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं. अच्छा, इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी? Journal entries. So the method of journal entries is same. The credit side. So if we started with interest on capital account debit, commission account debit for all the partners, right? A salary account debit, B salary account debit, to
partners capital account. Similarly, partners capital account debit to interest on drawings, or if partners bring in the loss, ABC's capital account. Right? Lastly, for the profits, so P&L account debit to P&L appropriation account, or for this it will be P&L appropriation account debit to partners capital account. So this is how we make the journal entries. We must remember to write the narrations with all the journal entries. Right? Narration is nothing more than whatever has been done here. So that is the narration. Right? So the next topic for us is interest on capital. Please understand, interest on capital is to be calculated on the basis of, the interest on capital is to be calculated on the opening balances. Now what will we do if we are given the closing balances? So I am given closing capital balance. Right? I have to add the drawings. वो सब चीजें जो मैंने निकाल ली अपने कैपिटल में से, उसको मैं बैलेंस करूंगा. ठीक है? ऐड बैक करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉसेस. ये सब चीजें कैपिटल में से माइनस हुई हैं, निकली हैं, इसलिए मैं इसको ऐड बैक करूंगा. मैं सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा? एडिशनल कैपिटल, कोई भी और कैपिटल आई है, क्योंकि मुझे तो कौन सी कैपिटल निकालनी है? 1 अप्रैल वाली. कोई और प्रॉफिट आया है, ठीक है, वो प्रॉफिट को मैं ऐड करूंगा. सो द बैलेंस इज द ओपनिंग कैपिटल. इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करूंगा. राइट? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस rather than on the closing balances. हमेशा ध्यान रखना कि ओपनिंग बैलेंस अगर आपको ये सब चीजें दी हैं तो आपको ऐड बैक करना है क्लोजिंग में या सब्ट्रैक्ट करनी है, ओनली देन ओपनिंग कैपिटल आएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. राइट? द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कुछ 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. पहली है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड एट अ फ्लैट रेट. अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ, सो आपको फ्लैट रेट पे कैलकुलेट करना है, लेकिन कब करना है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला. अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई तो, कोई भी डेट ऑफ ड्राइंग दी हो आपको अगर, तो आपको फ्लैट रेट पे कैलकुलेट करना है. अगर परसेंटेज में मेंशन्ड है तो. राइट? सो अगर आपको परसेंटेज में मेंशन्ड है तो आपको ये फ्लैट रेट पे ही कैलकुलेट करना है. जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई तो आप क्या करोगे? जो भी आप अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, सो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100. आपने अज्यूम कर लेना कि वो 6 महीने की है, 12 में से 6 महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हो. सो आपको उस तरह से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. राइट? नेक्स्ट इज व्हेन unequal withdrawals are there. आपकी withdrawals है but they are unequal. unequal withdrawals 2 मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल मेथड से, एक प्रोडक्ट मेथड से. सिंपल मेथड क्या होता है? सिंपल मेथड में हम एग्जांपल के साथ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 31 मई को आपने विड्रॉ किया 1,000 रुपया. 30 सितंबर को विड्रॉ किया 5,000 रुपया, और आपका रेट ऑफ ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%. राइट? सो सिंपल मेथड में आप क्या करोगे? इसको सिंपली कैलकुलेट कर लोगे. कितने महीनों का पेंडिंग है? 1,000 रुपया इंटू कितने महीनों का पेंडिंग है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, November, December, Jan, Feb, March. So it is 10 months. So the rate of interest is also 10% and drawings is also for 10 months. So whatever interest it will be charged. Next is 5,000.
into again 10%, but you have withdrawn it on 30th September. 30th September means October, November, December, Jan, Feb, March. So now you will calculate it for the remaining 6 months. जितने दिनों का आपने कैलकुलेट किया. This will be the total amount of drawings. So let's have the calculations. Right? It will be something 12 8s are 96, 40, 12 3s are 36, again 40. So 83.3 rupees for this transaction, and for here it will be 250 for the next transaction. So दोनों को ऐड करेंगे, it will be simple calculation, simple method of calculating unequal withdrawals, right? Then there is product method. The transactions remain the same. 1000 withdrawal, 5000 withdrawal. 1000 is withdrawal for 10 months, right? So 10 months are remaining. So the total amount capped would be 10,000. This is there out of the capital, out of the business for 6 months. So 30,000. Now the total amount is 40,000. So product कर दिया ना हमने. किससे प्रोडक्ट किया? जो रिमेनिंग मंथ्स हैं. कितने मंथ्स के लिए आपने विड्रॉ रखा है? 10 months, and for this 6 months. Same question. 40,000 into rate of interest on drawings is 10% into 1 by 12. 1 by 12 is average monthly balance. So that is why we divide it by 1 by 12. 3s are 36, 43s are 36. So it will be 333.3. The amount for this would also be 333.3 rupees. This is also 333.3 rupees. So the balance remains same. You may use either the product method or the simple method. The next is equal withdrawals. We need to make a table. So this is the table. So begin, middle, end. This is monthly, quarterly, half yearly, right? So what do you do if you have equal withdrawals beginning first of every month? Equal withdrawals having in the middle of every month, equal withdrawals in the end of every month. Similarly, beginning of every quarter, middle of every quarter, and end of every quarter. Similarly, beginning of half yearly. Please understand, half yearly is for 6 months. Middle of half yearly. Now, what is the date for middle of half yearly? It is 30th June. End of half yearly is 30th September and 31st March. So, for middle, it will always be 6 months. Now, since this is monthly, so monthly is 1, always divided by 2, half. So 0.5 एक्स्ट्रा होगा बिगन का, और 0.5 इससे कम होगा फॉर द एंड. क्वार्टर इज फॉर 3 months, 3 by 2 is 1.5. It means there would be a difference of 1.5, 7.5, 4.5. Half year is for 6 months, 6 by 2 is 3. So the difference would be for 3 months, right? And 3 months lesser. Now how do you calculate? Suppose you withdraw 1,000 every month. Beginning of every month. Now beginning of every month is 6.5. We have to calculate 6 with 6.5. 1,000 into 12. Why? Because you have withdrawn for continuously for 12 months. So total withdrawal कितना है? Total withdrawal is 12,000 rupees into 6.5 months से करना है. Let's assume the rate of interest is 10%. So this is how we calculate. What amount will it become? Can anyone of you calculate it for me? I believe it would be 650. क्योंकि 12 से ये कट जाएगा ना, 12 1000 हो गया, ये 1 0 कट गई, ये 1 0 कट गई. 6.5 से 100 को मल्टीप्लाई किया, it will be 650. So this is how we calculate 650 rupees rate of interest. So once again what we have done here is interest on drawings.
आपको परसेंटेज दी हुई है, जब फ्लैट रेट परसेंटेज दी हुई है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेम रेट पे कैलकुलेट करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग्स। डेट ऑफ ड्राइंग्स कुछ भी हो, आपको फ्लैट रेट अगर आपको दिया 10%, डेट ऑफ ड्राइंग कुछ भी हो तो 10% पे कैलकुलेट कर लो, इफ पर एनम इज नॉट गिवन अलोंग, राइट। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो आपको जो अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ईयरली करना है आपको। व्हाई हाफ ईयरली? बिकॉज एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है, सो आप अज्यूम कर लेते हो कि एवरेज। अनइक्वल विड्रॉल्स पे आपको सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों मेथड्स कैलकुलेट करने हैं। सिंपल मेथड में हर बार आप अलग से कैलकुलेट करते हो, हर बार अलग से कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर्मूला क्या है? जितना विड्रॉ किया मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड देन इज रेट, कितने रेट पे आपने किया, राइट। एंड प्रोडक्ट में आप रिमेनिंग मंथ के साथ मल्टीप्लाई पहले कर देते हो, बाद में उसको 1/12 से एवरेज करते हो, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज द अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। इक्वल विड्रॉल्स में जब इक्वल अमाउंट हर मंथ या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली रेगुलरली करते हो तो सो दिस इज द टेबल फॉर इट। मिडल सारा 6 आएगा, मंथली है तो 0.5 एक्स्ट्रा, क्वार्टरली है तो 1.5 एक्स्ट्रा, और ईयरली हाफ ईयरली है तो 3 एक्स्ट्रा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मैनेजरियल कमीशन कैलकुलेशन। मैनेजरियल कमीशन कैलकुलेशन दो तरीके से होती है, बिफोर चार्जिंग own commission and after charging own commission। अब बिफोर चार्जिंग ओन कमीशन क्या होता है और आफ्टर चार्जिंग ओन कमीशन क्या होता है? सी नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, बट नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10,000 का, एंड रेट ऑफ कमीशन हमें दिया हुआ है से 10%, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। अब बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है? बिफोर चार्जिंग का मतलब है नेट प्रॉफिट आपको दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ओन कमीशन, मैंने अपना कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। सो कमीशन वुड बी 10,000 इनटू रेट ओवर 100, इन दिस केस 10,000 इनटू 10 ओवर 100 व्हिच इज 1,000 रुपीस। सो बिफोर चार्जिंग ऑन कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑन कमीशन का मतलब है नेट प्रॉफिट इज 10,000 बट आफ्टर चार्जिंग ऑन कमीशन, यानी कि 10,000 में मेरा कमीशन इंक्लूडेड है। सो द फॉर्मूला विल बी 10,000 into rate over 100 plus rate. So as such it will be 10,000 plus into 10% है ना, 100 plus 10 which is 10,000 into 10 over 110. So the commission here would be if I calculate 10,000 divided by, it will be 909.09 rupees, right? So simply stating after charging का मतलब है नेट प्रॉफिट में कमीशन, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कमीशन चार्ज करने के बाद दिया हुआ है, और इसमें बिफोर का मतलब है नेट प्रॉफिट में से अभी कमीशन नहीं माइनस हुआ। सो बिफोर चार्जिंग में रेट ओवर 100, आफ्टर चार्जिंग में रेट ओवर 100 प्लस 8। अब इसमें राइट ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल सिंपली स्टेटिंग इज अच्छा नाम। अगर मेरी शॉप, मेरा बिजनेस किसी अच्छी जगह पे है, मेरे कस्टमर्स इंटैक्ट है, मेरी मैनेजमेंट अच्छी है, राइट, ये सब चीज़ें जब हैं तो हम उसको गुडविल बोलते हैं। ये गुडविल है। गुडविल दो तरह की होती है, या तो परचेज करते हैं हम या नॉन परचेज। नॉन परचेज को हम क्रिएटेड गुडविल भी कहते हैं। सो वो गुडविल जो मैंने खुद ने क्रिएट की है, राइट, मेरे अच्छा नाम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल के कारण वो गुडविल बनी है। सो इस चैप्टर में हम परचेज गुडविल को पढ़ेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। व्हाट आर दोज मेथड्स? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज further divided into simple and weighted average profit. Super profit, then there are capitalization methods.
कैपिटलाइजेशन क्या होती है? कैपिटलाइजेशन का मतलब है एवरेज कैपिटलाइजेशन एंड सुपर कैपिटलाइजेशन, राइट? दीज आर द मेथड्स जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सो लेट्स टॉक अबाउट एवरेज प्रॉफिट। हमें सबसे पहले चाहिए कुछ सालों का प्रॉफिट। सो फॉर एग्जांपल 2022 प्लस 23 प्लस 24, ये 3 सालों का प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट लिया हमने डिवाइडेड बाय 3 इन दिस केस, सो नंबर ऑफ इयर्स, राइट? जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सो सपोज आई राइट y as the average profit. So average profit will be y after this calculation. Now what will be the goodwill? The goodwill will be y multiplied by number of years purchase. कितने सालों से आप, कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट को आप बाय करना चाहते हो? दिस विल बी योर गुडविल इन केस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। For weighted average profit, what you need to do is you have to multiply every year with the weights given. For example 22 के साथ हम 1 weight लगा देते हैं, 23 को हम 2 weights देते हैं, 24 को हम 3 weights देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 1 6 नंबर ऑफ weights, total of weights. So क्या आएगा यहाँ पे? total profit after multiplying with weights divided by total weights. So ये आपका weighted profit आ जाएगा। हम assume कर लेते हैं इस क्वेश्चन में y weighted profit है। So goodwill क्या आएगी? Goodwill will be y multiplied by नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी आप परचेज कर रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर रहे हो, दैट विल बी y. सो दैट विल बी योर गुडविल। ओके, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए और दूसरा हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। So if I may write average profit minus normal profit. Average profit same method से calculate होगा, ये वाला total profit divided by total number of years. This is average profit. Normal profit calculate करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कितना आपने कैपिटल को एम्प्लॉय किया है, पैसा कितना लगाया है, मल्टीप्लाइड बाय कितना रिटर्न चाहते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय 100। सो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज लगाए हैं, आप 10% की रिटर्न चाह रहे हो, सो नॉर्मल प्रॉफिट इज 1000। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट 5000 आया है, नॉर्मल प्रॉफिट 1000 है, सो 4000 इज योर सुपर प्रॉफिट। 4000 सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? 4000 सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि एवरेज जितना आना चाहिए था और आपकी उम्मीद जितना आ गया, इस एवरेज जितना एक्चुअल आ गया, आपकी उम्मीद थी सिर्फ 1000 रुपये आता, आ गया 5000, सो 4000 आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है। जब 4000 आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है, इस बात का मतलब क्या है? गुडविल कैसे निकलेगी? सो गुडविल इन दिस केस विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जितने सालों की आपने बाय करनी है। सो सुपर प्रॉफिट इज 4000 मल्टीप्लाइड बाय, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स बाय करनी है हमें, सो द गुडविल विल बी 8000 rupees. So please understand these points: the weighted average profit, the average profit, the simple average profit, and super profit, right? So these are the points. ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ and we'll start with the capitalization. So capitalization के भी 2 ही methods हैं।
Let me erase them now. So very easy to calculate the purchase goodwill. Capitalization. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो भी गुडविल है हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी कि हम उसको उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, राइट? सो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज वी जस्ट डिड. उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ एनालाइज करके उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज करना है. कैसे कैपिटलाइज करेंगे उसकी वैल्यू को? सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला व्हिच इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय. इफ यू रिमेंबर जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो हमने क्या किया था? प्रॉफिट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 ओवर एनआरआर. एनआरआर ओवर 100. इसमें हम करेंगे 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. जो भी वैल्यू आएगी वो आपने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया. सो कैपिटल एम्प्लॉयड से हम डिडक्ट कर देंगे, दैट विल बी गुडविल. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको इसको इजी मेथड में समझाऊं, हमें बैलेंस शीट याद है, राइट? ये हमारी बैलेंस शीट है. सो यहाँ पे क्या क्या आता है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, राइट? यहाँ पे आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में आती है गुडविल. सो हमें ये वाली गुडविल फाइंड आउट करनी है थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड. अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट देके, यानी कि मेरे को कैपिटल एंड सब पता लग गया. कैपिटल पता लग गया, लायबिलिटीज दी हुई है, फिक्स्ड एसेट्स मेरे को अगर दिया हुआ है तो इन दोनों को ऐड करके इसको मैं माइनस करूंगा, रिमेनिंग विल बी माय गुडविल. सो दैट विल बी गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट को हम कैपिटल में डिवाइड करते हैं ना, सो इट विल बी गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड. द लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. गाइस इसमें मैं रश अप इसलिए कर रहा हूं, एग्जाम में आप अच्छी तैयारी कर लोगे, राइट? नेक्स्ट मंथ सीपीटी का एग्जाम है. सीपीटी में ये सारा सिलेबस है, सो प्लीज इसको अच्छी तरह तैयार कर लो, पर्टिकुलरली सीपीटी वाले अभी, राइट? देन +2 वाले. नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. सो नाम ही बता रहा है, कैपिटलाइज करना है हमें सुपर प्रॉफिट्स को. कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमारी फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फाइंड आउट करेंगे. अभी मैंने आपको बैलेंस शीट बना के दिखाई है, राइट? सो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, यानी गुडविल इसके अंदर आ गया. यहाँ पे आ गया कैपिटल एंड लायबिलिटीज. सो दिस प्लस दिस, यानी कि एसेट्स का टोटल माइनस दीज लायबिलिटीज, द बैलेंस अमाउंट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. आपने एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. नॉर्मल प्रॉफिट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका भी हमने देखा था. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका हमने अभी देख ही लिया. इन एनी केस पुराना मेथड भी हम यूज कर सकते हैं. द मेथड वाज एनआरआर ओवर 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? सो दिस विल बी सुपर प्रॉफिट. अब हमने इसको कैपिटलाइज कर देना है. जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर एनआरआर, ये हमारे गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 5 मेथड्स 1 2 3 4 5, राइट? अगर आपको इनमें से किसी का भी डाउट है तो आप प्लीज मेरी इंडिविजुअल वीडियोस देख लीजिए. हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं. प्लीज गो विद देम. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट्स. कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं हर एक फॉर्म में. देयर में भी क्लरिकल एरर्स, देयर में भी ओमिशंस, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं. सो उसके कारण हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है. कई अकाउंटेंट की 100% मिस्टेक नहीं भी होती, बट स्टिल कई कुछ ऐसी एरर्स आ जाती हैं जिनको आपको रेक्टिफाई करना है. अब आप कैसे करोगे? आप पूरा का पूरा अकाउंट तो चेंज नहीं कर सकते. सो आप क्या करोगे? पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट बना दोगे. एक
पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे पहले आपका कोई मैनेजर था, आप उसको अब रेट्रोस्पेक्टिव पीछे 2-3 साल पहले से आप उसको पार्टनर लेना चाहते हो, तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होता है, इट इज वेरी इजी, नो सेट फॉर्मेट फॉर दिस, बट मैंने एक फॉर्मेट बनाया, वो ये है। सो व्हाट आई अज्यूम इज आई हैव टू पार्टनर्स A and B, we are two partners, right? So this is firm. A has its debit side and credit side. B has its debit side and credit side. Firm has its debit side and credit side. Now what happens here is, basically I have made the capital accounts here. These are the capital accounts. So for example, interest on capital आपको देना था, गलती से आपने ज़्यादा दे दिया, interest on capital आपने ज़्यादा दे दिया, we'll assume it with the rough amounts, right? So interest on capital, suppose 2000 इसको ज़्यादा दे दिया और 3000 इसको ज़्यादा दे दिया। Why I have written them in debit side? जब भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था, तो जब भी हम पार्टनर से कोई पैसा वापस लेते हैं तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो 5000 रुपया था 2000A का 3000B का, हमने उससे वापस लेना है। जब हमने पार्टनर से वापस लेना है तो देना किसको है, फर्म के क्रेडिट साइड पे। जब पार्टनर कोई भी पैसा देगा तो वो आएगा किसके पास, फर्म के पास आएगा, फर्म के क्रेडिट साइड पे आएगा। फर्म के क्रेडिट साइड पे आने का मतलब क्या है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट्स टू दी पार्टनर्स। अब इस केस में कुछ मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स की रेशियो क्या है, इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट। सो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि उनकी रेशियो क्या है। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप क्या कहती है, पार्टनर लॉ क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर को क्या रेशियो में डिवाइड करना है, तो आपको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। इक्वल रेशियो कितनी होती है, 5000 रुपया क्रेडिट में था फर्म के, अब फर्म के डेबिट में आ जाएगा, आपने वो पैसा निकाल लिया, निकाल के क्या किया, 2500 रुपया इसको दे दिया, 2500 रुपया इसको दे दिया। अब हम नेट कर लेते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पार्टनर ए से आपने 2000 रुपया लिया, लेकिन उसको देना कितना था, 2500 रुपया देना था। सो इसका मतलब इसको 500 रुपया और मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा इसको, क्योंकि इसको 2000 दिया ना। इस बंदे से आपने 3000 लिया, लेकिन देना था 2500, 3000 दे दिया ना, गलती कर दी। अब इससे हम 500 रुपया वापस लेंगे। सो यही हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे पैसा लेना है हमने वो डेबिट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। फर्म का अकाउंट 0 हो गया बिकॉज 5000 आया था, 5000 हमने एंड द नरेशन being the amount adjusted. So कितना रुपए, 500 रुपए B से लेके A को दे दिया। This is past adjustment, right? इसी से मिलता जुलता मैनेजर एडजस्टमेंट भी यही होती है कि पहले पार्टनर जो था, पहले जो अब पार्टनर है वो पहले मैनेजर होता था। सो मैनेजर से सारी सैलरीज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी 2000 बनती है, या कोई और मैनेजर है जिसकी सैलरी 3000 बनती है। सो अगर दो मैनेजर्स को अपने पार्टनर बनाया, अब उनको 2500 रुपया देना है। सो इक्वल रेशो है, तो 500 रुपया इसको मिलेगा, इससे 500 रुपया लेना है। सो दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, जिससे पैसा लेना है फर्म ने वो डेबिट होगा, जिसको देना है फर्म ने वो क्रेडिट होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट है वो किसी पार्टनर को हम गारंटी कर रहे हैं। गारंटी कैसे करते हैं,
हम गारंटी करते हैं कि उस पार्टनर को मिनिमम इतनी अमाउंट जरूर मिलेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, अच्छा मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जितना नेट प्रॉफिट होता है उतना ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर ये एप्रोप्रिएशन है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि एप्रोप्रिएट करना है यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब अगर लॉसेस हैं, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। आई एम वंस अगेन सेइंग इट, if it is written in the question that you have to appropriate the profits to the partners, and if the firm has losses, partners will not receive anything. If the firm has sufficient profits, तो क्या होगा? अगर फर्म के sufficient profits हैं तो all the partners will receive either in agreed or in as per 1932 Act, Partnership Act 1932, as per that आपको रिसीव होगा। दो हो गए। तीसरा, प्रॉफिट्स तो हैं बट दे आर इनसफिशिएंट, तब क्या करोगे? इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स में हमें एक चीज कैलकुलेट करनी होगी। इफ आई राइट इट इन अ लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड टू यू, राइट, तो आप सारे पार्टनर्स की देनदारी कितनी है वो लिख लोगे। सो फॉर एग्जांपल यू हैव प्रॉफिट्स ऑफ 10,000, बट ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5,000 और ए को सैलरी देनी है 1,000, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3,000 और बी की सैलरी भी 3,000 है। सो 5 और 1 6 और 6 12,000 रुपया टोटल देना है, राइट? सो लेट्स अज्यूम बी की सैलरी 4,000 है। अब 6,000 4,000 यही आपकी रेशो बन जाएगी, 6,000 रेशो 7,000, सॉरी 7,000 यही आपकी रेशो बन जाएगी 6:7। सो ये 10,000 रुपीज कोई कैपिटल रेशो में डिवाइड नहीं होंगे। किस रेशो में डिवाइड होंगे? 6:7 में डिवाइड होंगे, राइट? दिस इज what happens in case of insufficient profits. Please understand insufficient profits, और वो भी appropriation के केस में। अगर चार्ज ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर तो सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं फिर तो प्रॉफिट दे दो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, सो आप लॉस क्रिएट करोगे, यानी कि पार्टनर को कहोगे कि वो लेके आए। सो उसमें बाय लॉस अकाउंट आएगा, यहाँ पे कंपल्सरीली आएगा अगर चार्ज ऑफ प्रॉफिट है एंड सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो, राइट? सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। सो कमिंग बैक टू द गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट से 10,000 टू interest on capital say 1,000 for all the partners taken together, so for A and for B, to salary B say 2,000, to commission A say 1,000, so 10,000 minus 4,000 is 6,000. Now to profit to A and to B, and if we are guaranteeing minimum 5,000 to B, what will happen here? इक्वल रेशियो है ना, तो 3,000 बच गया ना हमारे पास, 10 में से 4 माइनस किया 6,000 बच गया, 3,000। अब इसका तो 2,000 शॉर्ट हो गया, इसके पास है 3,000, इसके पास भी 3,000 है, लेकिन हमने तो इसको 5,000 गारंटी किया है, तो हम क्या करेंगे? ये बंदा अपना 2,000 का प्रॉफिट और देगा, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू रिसीव guaranteed 5,000. So A will take 1,000 home and B will take 5,000 home. The total will be 6,000. अगर losses हैं, if there is no profit, for example, no profits are there, what will happen?
If there are no profits, then you need to add the amount of 5,000 along, because इसको 5 तो जाएगा 5,000. तो बाय एज कैपिटल अकाउंट ए कितने पैसे लेके आएगा? ए लेके आएगा 4,000 ये जो कंपल्सरी देना है इन केस ऑफ चार्ज, एंड 5,000 ये. सो कितने पैसे लेके आएगा? ए ब्रिंग्स इन 9,000 rupees. A is capital account 9,000. You understand the matching concept we did in +1? So matching के मुताबिक A जो है वो 9,000 रुपये लेके आएगा, B किसी भी हालत में लॉस ले नहीं सकता, और ये 4,000 कंपल्सरी देना है. दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट.